Good morning, students. This is lecture number 9 of circular motion, and in the previous class we completed vertical circle. One or two general formula are pending, so those general formula I'll be discussing. But before that, one or two very nice questions from your circular motion DCT number 3. This is set B. Can you please tell me the questions? 6, 10, 10. 6, 10, 10. Now this question may be different question in your set. The question says a wheel increases speed from 60 rpm to 120 rpm in 10 seconds. ध्यान से सुनो बेटा, जब भी नंबर ऑफ रोटेशंस का क्वेश्चन पूछा ना, नंबर ऑफ रोटेशंस का, then your reverse way of thinking is this way: theta is equal to 2 pi into number of rotations. The question may be like this: I am switching on the fan, right? I am switching on the fan. Right now its speed is 10 rpm. Now its speed becomes 20 rpm in say 3 seconds. Then how many rotations are covered in going from 10 rpm to 20 rpm? Now this speed is 180 rpm. Students are feeling cold, saying, sir, please switch on the fan. I am switching on the fan. It is going to come to rest in 10 seconds. But before coming to rest, it will cover some rotations. Yes or no? So it can be either increasing or it can be decreasing. The common way of solving it is this: theta is 2 pi into number of rotations. The question is how many number of rotations it will cover. इसका मतलब मुझे थीटा ढूंढना चाहिए. अब उन्होंने मुझे दो फ्रीक्वेंसीज दिए हैं, सो आई शुड गो फॉर ओमेगा 2 स्क्वायर इज ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा थीटा, प्लस इफ इट इज स्पीडिंग अप माइनस इफ इट इज स्लोइंग डाउन, राइट? तो इससे मुझे थीटा मिलेगा, because alpha I can find out using the formula omega 2 minus omega 1 upon time. और उन्होंने मुझे F1 दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, राइट? तो ये तीनों की हेल्प से मैं अल्फा ढूंढूंगा, या अल्फा में इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा. ओमेगा 1 मुझे मालूम है, ओमेगा 2 मुझे मालूम है, यस और नो? तो मुझे अल्फा मिलेगा, राइट? अल्फा इधर से मिला, अभी थीटा मिलेगा. दिस थीटा आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर. टेक्निक समझा? सो इट इज अ 3 स्टेप प्रॉब्लम. फर्स्ट यू से थीटा इज 2 पाई इंटू एन, साइड में रखो उसको. देन यू से अल्फा इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टाइम, राइट? वो जो वैल्यू आया उसको थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन में रखो. मींस इन सिंपल लैंग्वेज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन एंड थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. समझा बेटा? जब भी नंबर ऑफ रोटेशन पूछा ये. एंड ऑफिशियली वी हैव दिस in miscellaneous wala exercise. Officially we are going to do 2-3 sums like this, and mind you, this sum is equally important for the chapter rotational motion. This is equally important for the chapter rotational motion. एक ये क्वेश्चन था, और दूसरा कौन सा था? 10th क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन. एक मिनट. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी यू कैन नॉट यूज बिकॉज देयर आर 2 ओमेगास गिवन. अरे बेटा, देयर आर 2 ओमेगास गिवन. इफ यू आर यूजिंग थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, that means 2 pi ft. which frequency are you using? There are 2 frequencies. It is speeding up from 60 rpm to 120 rpm. Are you getting my point? Okay, ये भी बेटा बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है. Too good. The extremity of the hour hand of the clock is 1/20 times faster than minute hand. Apply common sense. तीनों हैंड्स में सबसे फास्ट कौन मूव करता है? सेकेंड. उसके बाद में स्लो, उसके बाद में स्लो. उन्होंने क्या बोला है कि the extremity of the hour hand is 1/20 times extremity of the minute hand. इसका मतलब ये हुआ कि if this is your clock, another very beautiful question. This is your clock, okay, and this is your RN. This is your RN, and this is your minute hand. Obviously minute hand is bigger, तो जिसका R ज्यादा उसका V ज्यादा, तो इसका V is V of minute hand and इसका V is V of RN. Which hand is slower? RN. So उन्होंने क्या बोला है? Velocity of RN is 1/20 times velocity of minute hand. ये बोला है. That means R omega is 1/20 times R omega
ऑफ आवर एंड, ऑफ आवर एंड, ऑफ मिनट हैंड, ऑफ मिनट हैंड. समझा बेटा? राइट. आर एंड मीन्स लेंथ ऑफ आवर एंड, बिकॉज आर इज एल. राइट. ओमेगा ऑफ आवर एंड इज 2 पाई बाई टाइम ऑफ आवर एंड. This is 1/20 times. R of minute hand is length of minute hand, and this is 2 pi by time of minute hand. So this gives me 2 pi gone, 2 pi gone. Length of R and पूछा है. Time of R and is a standard value. Time of R and is 12 hours. It is not 60 minutes. 60 minutes is for minute hand, right? That means 1 hour is for minute hand. 12 hours is for hour hand. So this is LH upon 12 hours is the 1/20 times. Length of minute hand उन्होंने दिया है 10 सेंटीमीटर. You can check. And time of minute hand is 1 hour. ये दोनों मैंने आवर में रखा हुआ है जानबूझ के. Because then I don't need to go for 3600 seconds and 43,200 seconds. अभी वो 3600 और 43,200 सोचते कौन बैठेगा? R gone. Yes or no? 10/20 is half. 12/2. Your answer is 6 centimeter. Your answer is 6 सेंटीमीटर. बेटा जिन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आया था, आई थिंक ये सब सेट्स में होगा, आगे पीछे रखा होगा मैंने. जिन लोगों को ये नहीं आया था, हियर इज द सॉल्यूशन. जिन लोगों को नहीं आया था, हियर इज द सॉल्यूशन. वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, वेरी वेरी पॉपुलर. शैल आई डिक्टेट दिस क्वेश्चन टू यू? यू कैन राइट दिस इन द बुक. आपके बुक का जो 0th पेज है ना, उधर लिखो. आपके बुक का जो 0th पेज है उधर लिखो. पहले क्वेश्चन लिखो बेटा, पहले क्वेश्चन लिखो. Shall I start? iPad नोट्स के लास्ट में लिख लो. यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. iPad नोट्स के लास्ट में लिख लो बेटा. चले, जहां जहां आपको ब्लैंक स्पेस मिलता है ना, अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लिखो. अब ये हो सकता है कि वो हॉट्स में कहीं पे हो, मिसलेनियस में हो, लेकिन नहीं है तो एक अच्छा क्वेश्चन कवर हो जाएगा. राइट. अच्छा, माइंड यू पीसीबी स्टूडेंट्स, द ओल्ड रूल हैज कम बैक. देयर विल नॉट बी एनी ऑप्शंस. और वो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा ही होना चाहिए. It was just a temporary arrangement during Corona time that section A 35 MCQs compulsory and section B out of 15 you have to solve any 10. अभी out of 15 you have to solve any 10 मतलब competition factor थोड़ा reduce हो जाता है, क्योंकि वो 3-4 क्वेश्चन जो बहुत टफ है मुझे नहीं आते और मैंने वो छोड़ दिया और बाकी के 10 मुझे आते हैं. Right? So when there is no option, that means that competition is really there. So henceforth we will start setting the questions as per the latest style, and this rule will not go back because this was a temporarily arrangement because Corona was going on. Yes or no? It was because of COVID-19. So we are going to set 45 MCQs this Sunday onwards, and all 45 will be compulsory. So time same रहेगा? Time नहीं. पहले उन लोग ओरिजिनल टाइम 3 hours देते थे. राइट. बाद में उन्होंने जब ये 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देना शुरू किया, 3 hours 20 minutes देते थे. तीनों साथ में होते थे ना क्वेश्चन. राइट. तो now we will start giving you 1 hour. Now we will give you 1 hour, right? Because 3 hours, 180 questions, 180 minutes, correct? वैसे मेन एग्जाम में ज्यादा टाइम मिलेगा बेटा, डोंट वरी, बिकॉज बायो का क्वेश्चन पेपर फटाफट खत्म होता है. और बायो के 90 MCQs आराम से आपके 50 मिनट्स में खत्म होता है, 45-50 मिनट्स में. तो उसका जो टाइम मिलता है ना, नॉर्मली स्टूडेंट्स डिवोट दैट टाइम टू फिजिक्स. ये तो अपने संडे एग्जाम में तीनों पेपर हम लोग साथ में नहीं दे रहे क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं. लेकिन मेन मॉक टेस्ट पेपर में, प्रीलिम्स में, वी आर गोइंग टू गिव यू ऑल 3 पेपर्स टुगेदर exactly like the way it is in the main. In fact, some of the papers we deliberately keep it from 2 to 5 only. Usually our Sunday exams are from 10 to 1 या तो 7 to 10. When your mock test exams begin after the board exam, we will deliberately keep some of the papers from 2 to 5 so that you get that feel of heat also, because it is hot summer that time. When your exam is on, that time is it hot summer, so you have to have that feel also. No ACs, very hot, right? So many stringent rules. You can't carry this, you can't carry that. चप्पल पहन के जाओ, पिंस डाल के मत जाओ, जेब नहीं होना चाहिए. हाँ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाए. So पैंट में जेब नहीं होता है, कफन में जेब नहीं होता है, वो सब फिलोसफी. या क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ. The extremity of the R end, the extremity of the R end of a clock. The extremity of the R end of the clock is 1/20th. Is 1/20th. 1/20th. As fast as minute hand. As fast as minute hand. If the minute hand
if the minute hand is 10 centimeter long, then the length of the R end will be, options 3 centimeter, 6 centimeter, 12 centimeter, 18 centimeter. 3, 6, 12, 18. दोनों अच्छे क्वेश्चंस थे, दोनों समझ में आए। Shall I rub this? चलो बेटा, रैपिड फायर राउंड, टोटल फोकस ऑन द बोर्ड, बुक्स aside, memory check. We are going to talk about 28 things. Theta, height, kinetic energy, potential energy, total energy, velocity energy. Okay, one by one. I am going to take 4 positions. 1, 2, 3, and 4. A, B, C, and D. Yes or no? What is theta here? 0. What is theta here? 180. What is theta here? 90. And what is theta here? Some value between 0 and 180. Because ये D मैं इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, किधर भी ले सकता हूँ. Our next parameter is height. What is height at point A? 0. What is height at point B? 2R. What is height at point C? R. And what is height at point D? Anything between 0 and 2R. And our formula was L times 1 minus cos theta. L times 1 minus cos theta. Then comes velocity at this point. Velocity. Can I say it is minimum root 5 RG? Yes. Minimum. So what is the better way of writing this? More than or equal to root of 5 RG. इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, ज्यादा होगा तो चलेगा. Right? What is velocity here? Velocity here is minimum root of RG. Minimum. उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, कम होगा तो नहीं चलेगा. अच्छा, कब तक चलेगा? जब तक आप ब्रेकिंग टेंशन अटेन नहीं कर लेते. जैसे ब्रेकिंग टेंशन आ गया, that velocity is not allowed. Suppose the string breaks at root 9 RG. That means root 9.1 RG is not allowed, but because the string is broken, right? What will be velocity here? Minimum root of 3 RG. Minimum root of 3 RG. And what will be velocity here? It will be a general formula. अब वो general formula आज मुझे derive करना है, क्योंकि last time हम लोगों ने general formula derive नहीं किया था. So is the time for me to derive general formula, right? Few more important points. There are 7 things. Out of 7 things, when we go from bottom to top, few things increase, few things decrease. So as we move from bottom of the circle to top of the vertical circle, which physical quantities decrease and which physical quantities increase? Come on, which physical quantities decrease? Can I say? Velocity will decrease.
velocity will decrease, therefore kinetic energy will decrease and even tension will decrease. Which physical quantities increase? Theta will increase, so height will increase, so potential energy will increase. And which physical quantity remains constant? Can I say total energy will be 5/2 mRg and will be constant throughout? But it's the time for me now to derive the general formula. Do I say V square is equal to U square plus 2gh के बदले minus 2gh? Because मेरा आर्ग्यूमेंट है वेलोसिटी कम होगा, मेरा आर्ग्यूमेंट है वेलोसिटी कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि V is under root U square minus 2gh. H is L times 1 minus cos theta. सोचो बेटा, V is equal to under root U square minus 2gl bracket 1 minus cos theta. L आपको पता है, राइट? इनिशियल वेलोसिटी वो लोग दे देंगे कि मान लो आप पॉइंट E से D पे जा रहे हो, तो E पे इसका वेलोसिटी 10 था, तो D पे इसका वेलोसिटी कितना होगा? एंगल कवर इससे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री. दे विल गिव यू सम राउंड फिगर एंगल. वेलोसिटी का बेटा जनरल फॉर्मूला समझा? आप अपने आईपैड नोट्स पे हो, पेज नंबर 8. एकदम लास्ट दो फॉर्मूले बाकी थे, चेक करो. उसमें से पहला वाला जनरल फॉर्मूले जहां पे लिखा हुआ है वो पहला वाला. अभी मैं टेंशन का जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं. अच्छा, और एक बात, ये हमारे जितने भी आंसर्स आए थे किसमें आए थे? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आए थे. ये पूरा जो मैं टेबल लिख रहा हूं, ये किसमें लिख रहा हूं? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी दो ब्यूटीफुल शॉर्टकट्स है. इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर आपको वेलोसिटी ढूंढना है, then there is a general formula, we can cross check also. Then there is a general formula, velocity is under root GL bracket 3 plus 2 cos theta. Please note, आप ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये यूज करने का. अब मुझे चेक करना है कि मैं राइट हूं कि रॉन्ग हूं. आई एम एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट. थीटा इज cos 0, 2 1s are 2 plus 3 आ गया 5gl. Okay, I am at horizontal point. Theta 90, cos 90 0, 3 plus 0 3 आ गया root 3gl. Are you getting my point? You can use this only when you are talking about equilibrium condition. नहीं तो नहीं. अच्छा, tension का भी ऐसा जनरल फॉर्मूला है. But before that, what is tension here? Is it minimum 6 mg? So can I say greater than or equal to 6 mg? 6 mg से ज्यादा होगा तो चलेगा, कम होगा तो नहीं चलेगा. 7 mg चलेगा, 8 mg चलेगा. Suppose 9 mg is breaking tension. Just 9 mg चलेगा, 9.1 mg नहीं चलेगा, because by the time string is broken. When this is the tension at the lowest point, then what is the tension at the highest point? What is the tension at the highest point? Is it just 0? Yes or no? So what is tension at the horizontal point? Is it just 3 mg? तो बेटा टेंशन का भी एक जनरल फॉर्मूला है, and that is 3 mg bracket 1 plus cos theta. चेक करो, आप cos theta का वैल्यू डाल के देखो. ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये आपके पेज नंबर 8 पे नहीं होगा, क्योंकि पेज नंबर 8 पे मैंने एकदम जनरल फॉर्मूला लिखा है. These are the formulae which you can use in equilibrium condition. These are the formulae you can use in equilibrium condition. Very good. ये पेज नंबर 9 पे दिया है बेटा. वेरी गुड. ये पेज नंबर 9 के बॉटम पे दिया है. ये पेज नंबर 9 का बॉटम पे दिया. तो जो बॉटम है ना, एकदम बॉटम, उसमें लिखो ओनली एंड ओनली इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओनली एंड ओनली इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओनली एंड ओनली इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. अदरवाइज आप लोगों को बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करना. देखो ये एनी पोजीशन है, राइट? उसमें से एक लिखा मैंने बोर्ड पे, उसमें से एक मैंने लिखा बोर्ड पे. अभी दूसरा लिखने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो. दिस इज जनरल फॉर्मूला. अभी जो मैं लिख रहा हूं वो जनरल फॉर्मूला है. जनरल फॉर्मूला आर देयर ऑन पेज नंबर 8 बॉटम. उसमें से पहला वाला मैंने लिखा, समझा? अभी मैं दूसरा वाला लिखने जा रहा हूं.
What is tension in general? What is tension in general? Is it mv square upon r plus mg cos theta? अभी जो मैं प्रूफ लिखने जा रहा हूँ, प्रूफ आपके आईपैड नोट्स में नहीं है, तो अगर प्रूफ लिखना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट एंड देन एट द बॉटम ऑफ पेज नंबर 8 यू कैन राइट दिस प्रूफ कि फॉर्मूला आया कैसे. दिस इज टेंशन एट एनी पॉइंट. This is mv square upon r plus mg cos theta. This is velocity at any point. This is velocity at any point. So tension at any point is m upon r times velocity का square, मतलब इसका square. So this is u square minus 2gl bracket 1 minus cos theta plus mg cos theta. Yes or no? Plus mg cos theta. So that gives me inside the bracket, open the bracket, inside the bracket, open the bracket. So t at any point is given by m upon r times u square minus 2gl minus plus 2gl cos theta plus mg cos theta plus mg cos theta. So this is tension at any point is m upon r, अंदर लेके जाओ. So is it m u square upon r? R कट हुआ, R और L कट हुआ, बिकॉज R एंड L आर सेम, तो इसको मैं M अपॉन L भी लिख सकता हूँ, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. L कट हुआ, इज इट माइनस 2mg? फिर थर्ड वाला टर्म L कट हुआ, इज इट प्लस 2mg cos थीटा? राइट, प्लस mg cos थीटा ऑलरेडी बाहर है, राइट. सो mg cos थीटा प्लस 2mg cos थीटा gives you 3mg cos थीटा. So that gives me m u square upon L minus 2mg plus 3mg cos theta. अब ये दोनों टर्म्स में mg कॉमन है, so this gives me m u square upon L minus mg कॉमन 2 minus 3 cos theta. अब ये दोनों टर्म में m कॉमन है, so this gives me tension at any point is m कॉमन. अंदर क्या आएगा? u square upon L minus mg times m कॉमन लिया मैंने 2 minus 3 cos theta, राइट. और ये L अभी मैं LCM ले लेता हूं. So my final was formula is m u square minus 2 gl u square minus gl 2 minus 3 cos theta अपॉन एल. वो एल मैंने बाहर ले लिया. बेटा वो पेज का एकदम लास्ट फॉर्मूला चेक करो, ये फॉर्मूला होगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको प्रूफ नहीं आया तो चलेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया. जिनको प्रूफ में इंटरेस्ट है, आपके पास ये फॉर्मूला है, बोलो सब्स्टिट्यूटिंग दिस फॉर्मूला इन दिस फॉर्मूला यू गेट दिस प्रूफ. प्रूफ लिखना है तो बेटा पेज नंबर 8 के बॉटम पे, नॉट कंपलसरी, लिखना है तो लिखो. मेरे हिसाब से लिख के रखो, एग्जाम के टाइम पे नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम रिमेम्बरेंस वाइज सपोज तकलीफ आया तो यू नो कि कैसे आया. सो माइंड यू, टेंशन के 2 फॉर्मूले, वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले. रुक जाओ, टेंशन के 2 फॉर्मूले हियर एंड हियर, वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले हियर and here, but you can use this only if you take tension 0 here. इधर टेंशन 0 नहीं होगा तो mg होगा, तो 2mg होगा, तो 3mg होगा, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेगा. You can use this formula only if velocity is root gl here. अगर root 2gl, root 3gl हुआ तो you can't. Means please remember you can use this formula only in equilibrium condition. ये बेटा पेज नंबर 9 के बॉटम पे दिया है, ये पेज नंबर 9 के बॉटम पे दिया है. और अभी जो मैंने डिस्कस किया दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8 बॉटम. सो सबसे जनरल फॉर्मूला ये और ये. केयरफुल क्लास. अभी तक बेटा हम लोगों ने 4 फिजिकल क्वांटिटीज किया. 4
तीन बाकी है. काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल. आत्मा, आत्मा, तुम लोग यार पेन चेंज नहीं करते हो. ब्लैक पेन में बार बार चेंज कर रहा हूँ. आ जा तू देख ले. ब्लैक और ब्लू दे, आर्ग्यूमेंट मत. ब्लू है ना, ब्लू भी डाउन ही है. देखो ना, एक देखे. हो गया बेटा प्रूफ लिख के. स्टूडेंट्स प्रूफ लिख के हो गया बेटा. ओके. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. कॉमन सेंस अप्लाई करो. काइनेटिक एनर्जी इफ इट इज हाफ mv स्क्वायर. अभी सिर्फ मैं इसके जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में मेरे पास v के दो अलग अलग ऑप्शंस हैं. दिस एंड दिस, दिस एंड दिस. यस और नो? दिस एंड दिस. करेक्ट. पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? एकदम कॉमन सेंस. इज इट mg टाइम्स L टाइम्स 1 माइनस cos थीटा? एंड कैन यू से टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन. इट इज ऑलवेज 5/2 mg. लास्ट टाइम अपना पेज नंबर 8 हुआ था. अभी देखो अपना पेज नंबर 9 भी हुआ. अभी देखो अपना पेज नंबर 9 भी हुआ. सो पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कल अगर एक ही पेज में याद रखना, सिर्फ एक पेज, then that is page number 9. Safe will be page number 8 and 9. Safe will be page number 8 and 9 because page number 8 पे आपके पास प्रूफ भी है कि कैसे आया सब. समझा बेटा? मैंने अब तक जितने भी लेक्चर्स थे ना सब ओपन रखे हुए. So by chance if you want to revise in rapid fire round, you can revise. Yesterday I opened the vertical circle lecture also. It is not locked. You don't need any link for that. Straight away visit that lecture and revise. So let us get started with assignment number 4, vertical circle. Let us get started with vertical circle assignment number 4. बेटा आपका iPad notes आपके बाजू में होना चाहिए. आपका iPad notes आपके बाजू में होना चाहिए. पेज नंबर 8 एंड 9. iPad notes पेज नंबर 8 एंड 9 आपके बाजू में होना चाहिए. शुरू करो. असाइनमेंट नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 1. A weightless thread can tolerate, can withstand a tension of 3.7 kg weight. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? हाँ, 3.7 kg weight से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अच्छा, can we say kg weight is a convenient unit? Official unit is Newton, so you should multiply by value of gravity. Usually we can take this as 10. उन्होंने दिया भी है. Mass of 500 gram is tied and is revolved in a circular path of radius 4 meter. G is 10. Then what is the maximum angular velocity? पहले तो बेटा ये सोचो कि मैक्सिमम वेलोसिटी होगा कौन से पॉइंट पे, whether it is linear or angular. मैक्सिमम वेलोसिटी होगा कौन से पॉइंट पे? बॉटम मोस्ट. वेरी गुड, बॉटम मोस्ट. So do you agree with me? Tension at any point is mv square upon r plus mg cos theta. या तो it is m omega square r plus mg cos theta. Yes or no? Because you want the velocity to be maximum, therefore that point should be lower. So since omega should be omega maximum, therefore the position of the particle should be lowest.
position of the particle should be lowest. So what is tension at the lowest point? Is it m omega square lowest r plus mg cos theta? Yes or no? Tension उन्होंने दिया है 3.7. So into 10. Mass is common. Omega lowest point square r plus g cos theta. Yes or no? So 37 is equal to mass of the particle, please. 500 gram. Is it half kilogram? Omega at lowest point मालूम नहीं है. Radius of the circle, please. 4 meter. This is 10. ये lowest point था. इसका मतलब ये cos 0 था. ये lowest point था मतलब ये cos 0 था. So is it 10 into 1? So this gives me 74 is equal to omega square into 4 plus 10. That means 4 omega square is 64. Therefore omega square is 16 and therefore omega is 4. समझा? रुको. इसमें लोएस्ट पॉइंट दिया, ओमेगा पूछा. कभी कभी ये लोग क्या करेंगे, थीटा को छोड़ के सब कुछ दे देंगे. ध्यान से सुनो, थीटा को छोड़ के सब कुछ दे देंगे और बोलेंगे फाइंड आउट वेयर इज द पार्टिकल. फाइंड आउट वेयर इज द पार्टिकल. एग्जाम्पल. There are two very beautiful questions, 2nd and 10th. 2nd and 11th. Sorry. रुको. Stop writing. 2nd and 11th. उसमें आप ध्यान से देखो, थीटा को छोड़ के सब कुछ दे दिया दोनों सम्स में. बराबर. आपको पूछा जाएगा कि पार्टिकल किधर है. आपको cos थीटा ढूंढना है. Suppose cos थीटा 1 आया. That means theta is 0. Particle is at the lowest point. Suppose cos theta 0 आया. That means theta is 90. Suppose cos theta -1 आया. Suppose cos theta half आया. That means theta is 60, right? And you can measure 60 with respect to vertical line. No? Are you getting my point? So question number 1 में लिख के रखो. Solve 2 and 11. वो दो क्वेश्चन में से कोई भी एक करूंगा मैं. ये क्वेश्चन हो जाने के बाद. Right? Before I do that, please let me know. Have you understood first question? Have you understood first? Copying wise, will you please be little fast? We will try at least to finish assignment 4 today. We will try to finish assignment 4 today. आज से एक पीछे पड़ जाओ एकदम फिजिक्स के. Yesterday physics was not there. In the previous week I took 3 lectures on circular motion. This week also I am getting 2 lectures. So you can understand how much extra content I have covered from the last physics exam. So I have got a lot of chance to ask you new things. Lot of chance. Plus please understand, no options now. Okay? No bunking, huh? No bunking. Take great care of your health and pray for our health also. Don't pamper yourself for small things. दो छींक आ गया और आज मैं नहीं जाऊंगा क्लास में. I'm suffering from cough and cold. That is not done. थोड़ा बॉडी दर्द कर रहा है, नहीं, my body is aching like hell. Stop pampering yourself. फिजिकल कंडीशन से भी मेंटल कंडीशन अगर खराब हो गया ना, 2 लेक्चर फिजिक्स का बंक मारा ना, तीसरे लेक्चर में फील आएगी कि फिजिक्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता. भारत माता मुझे कुछ नहीं आता. राइट? एंड इफ योर मेंटल हेल्थ इज बैड देन योर फिजिकल हेल्थ विल डेफिनेटली बी अफेक्टेड. ट्रस्ट मी. स्ट्रेस किल्स. सो डोंट बंक एंड इंस्पायर फ्रेंड्स आल्सो नॉट टू बंक. मैंने पहले भी बोला था, अभी सब टफ चल रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 कॉपीड. क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा. आर यू ऑल विथ मी? क्वेश्चन नंबर 2. A 2 kilogram stone is at the end of a string which is 1 meter long, hurled in a vertical circle. आपको सबसे मेन अभी से क्या पढ़ने का? कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले ये पढ़ने का कि हॉरिजॉन्टल सर्कल है कि वर्टिकल सर्कल है. हॉरिजॉन्टल सर्कल है, खुश रहो, सिंपल. वर्टिकल सर्कल है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. A 2 kilogram stone is at the end of a string which is 1 meter long and is moved in vertical circle
with constant speed. Constant speed मतलब वो particular instant पे उसका speed constant है, right? The speed of the stone is 4 meters per second. Then the tension in the string is 52 Newton. Then where is the stone? Look at the options. They have given you the stone is at the bottom, the stone is at the top. मतलब वो particular instant पे उसका speed 4 है. अच्छा ये throughout 4 रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा. Yes or no? बिल्कुल नहीं रहेगा. Everybody stop writing please. Tension at any point is mv square upon r plus mg cos theta. टेंशन का वैल्यू बोलो प्लीज. 52. मैं मास कॉमन ले रहा हूँ इधर. मास कॉमन लिया मतलब अंदर आया v स्क्वायर अपॉन r प्लस g cos थीटा. देयरफॉर मास का वैल्यू बोलो प्लीज. मास का वैल्यू इज 2 kg. ओके. स्पीड का वैल्यू 4. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 क्योंकि मैं r को l लिख सकता हूँ, g को मैं 10 लिख सकता हूँ. cos थीटा आई डू नॉट नो. सो दिस गिव्स मी 52 upon 2. 52 upon 2 is 26. This is 16 plus 10 cos theta. Yes or no? That means 10 is equal to 10 cos theta. That means cos theta is 1. That means theta is 0 degree and therefore the particle is at lowest point. The particle is at lowest point. Stop writing please. Stop writing. सोचिए क्वेश्चन चेंज करना मेरे लिए कितना इजी है. 52 का मैंने 32 किया. 52 का मैंने 32 किया. बाकी क्वेश्चन एकदम सेम रखा. So 32 upon 2 is 16. 16 minus 16 is 0. Cos theta is 0. Theta is 90. I am sure option में horizontal point या तो mid point होगा. हाफवे है ना, तो हाफवे जिधर है ऑप्शन सी में उसके ब्रैकेट में लिखो if t is 26 न्यूटन. स्टॉप राइटिंग प्लीज. वेट. अगर ये 26 न्यूटन को मैंने 6 न्यूटन किया 6 तो ये बेटा हो गया 6 मतलब 52 बोला था, बाद में क्या बोला मैंने 32 बोला ना. आप लोगों ने क्या लिखा होगा वैल्यू? टेंशन 32 लिखा ना. आंसर सी कब आएगा? व्हेन द टेंशन इज 32. अब ये 32 के बदले हो गया सपोज 12. 32 के बदले हो गया 12. तो 12 upon 2 is 6. 6 minus 16 is minus 10. आपका cos थीटा का वैल्यू आएगा -1. यस और नो? देयरफॉर आंसर आएगा 1. मतलब आपका आंसर ये क्वेश्चन में एज पर द क्वेश्चन आपका आंसर है ए. एज पर द क्वेश्चन आंसर is A. आंसर B कब आता? आंसर B कब आता? If tension is 6 न्यूटन. आंसर C कब आता? If tension is एक मिनट, ये 12 होना चाहिए. यस, बिकॉज ये 12 हुआ तो अपॉन 2 में 6 होगा. ये होना चाहिए 32 बराबर. और एनी पोजीशन पे आपका cos थीटा का आंसर -1 और 1 के बीच में कोई भी वियर्ड नंबर आएगा. -1 भी नहीं आएगा, +1 भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा. इट में भी -half, इट में भी 0.5, मे बी 0.7071 समथिंग लाइक दैट. बराबर. मतलब हम लोगों ने एक में से 4 क्वेश्चंस बनाया. स्टॉप प्लीज, स्टॉप. विजिट क्वेश्चन नंबर 11. विल यू बी एबल टू डू इट नाउ? Question number 11 you will be able to solve on your own now. Am I right? Am I right? चलो बेटा copy. So this was question number 2. Nice one. हाँ बेटा इसमें G10 लेने का. Unless or until the numbers are really weird. तो फिर 9.8 लेके देखने का. तो फिर एक बार 9.8 लेके देखने का. Done?
Students, 1 and 2 done. 1 and 2 done, students. Okay. 11th on your own. 11th में लिख के रखो same as 2. 11th में लिख के रखो same as 2. एक मिनट बेटा रुक जाओ. Camera is on. Audio also is on. Shut your mouth. Chalo next, third one. Let me see. You have to do it on. Question number 3. बहुत इजी है बेटा. बॉटम पे सर्कल का मिनिमम एंड बॉटम पे मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए? रूट ऑफ 5gl. रूट ऑफ 5gl. वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल सर्कल शुड बी मिनिमम रूट ऑफ 5gl. मिनिमम वर्ड बोला है उन्होंने, अंडरलाइन मिनिमम. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम एंड द टॉप? सपोज बॉटम पे हाफ mrg है, 5/2 mrg. बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे 5/2 mrg है. क्यों? Why? Since velocity is 5rg. बराबर ना? So kinetic energy at the top कितना होना चाहिए? It should be half mrg. Since velocity should be minimum root of rg. तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 4/2 mrg. That means 2 mrg. इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना हो गया? 4/2 mrg. That means 2 mrg. समझा? ये रूट 6rg होगा बेटा, तो ये रूट 2rg होगा. ये रूट 7rg होगा, तो ये रूट 3rg होगा. ये रूट 8rg होगा, तो ये रूट 4rg होगा. सपोज ब्रेकिंग स्पीड इज रूट 8rg, मतलब रूट 8.1rg यू कैन नॉट टेक, राइट? सो क्वेश्चन 4 का आंसर इज 2 एम्पियर. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. The minimum speed of the particle at the lowest point of vertical circle of radius r is v. If the radius of the circle is reduced to 1/4. पूरा चैप्टर में बेटा कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी देख लो. क्वेश्चन नंबर 5 की 6. Can I say velocity is always proportional to root of rg into something? याद करो, याद करो. इसका मतलब velocity is always of the type proportional to root of r. Since radius is 1/4, since radius is 1/4, can I say velocity is 1/2? Since radius is 1/4, velocity is 1/2. So answer is v/2. Your answer is v/2. समझा कि वापिस बोलो? अनबैंड रोड याद करो, v is root of mu rg. बैंड रोड याद करो, v is root of rg tan theta. बैंड रोड विथ फ्रिक्शन याद करो, रूट rg ब्रैकेट mu plus tan theta अपन 1 minus mu tan theta. ये वाला वेलोसिटी देखो, 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 कोई भी उठा के देख लो. Can I say it is proportional to root of r? R is 4 times, velocity is doubled. R is 1/4, velocity is, right? R is 1/4 ना ये क्वेश्चन, so velocity is 1/2. क्वेश्चन नंबर 6 बेटा एकदम सेम है, आप लोग ट्राई करते हो. बैंड रोड का क्वेश्चन है, बैंड रोड का, और उन्होंने बोला है कि if the speed of the car has to be doubled, what happens to radius of curvature? It should be 4 times. Suppose maximum speed 30 है, आपको इसको 60 करना है, तो आप रेडियस क्या, या तो आप एंगल ऑफ बैंकिंग बढ़ाओगे, और अगर रोड एकदम ब्रॉड है तो आप रेडियस बढ़ाओगे. उन्होंने रेडियस के बारे में पूछा, अप्लाई कॉमन सेंस. Is it the same formula which I have used on the board? Velocity is proportional to root of r. Since velocity has to be doubled, radius should be 4 times. आपका पहले रेडियस कितना था? पहले रेडियस कितना था? It should be 120. It should be 120. So can I say 6th is same as 5th? Yes or no? 6th is same as 5th. I hope I am not fast.
Your answer should be 120. Seventh question. A particle of mass m is rotating by means of a string in the vertical circle. The difference in the tension at the bottom of the circle to the horizontal. जब कुछ भी नहीं दिया है तो क्या लेने का? उन्होंने बोला नहीं है ना कि बॉटम पे टेंशन कितना है. Can we say ideal condition? So can we say in equilibrium condition? क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं है. In equilibrium condition, students, what is tension at the bottom? 6 mg. And therefore, what is the corresponding tension in horizontal point? It is 3 mg. Yes or no? So what is difference in tension? 3 mg. समझा कि वापस बोलूं? उन्होंने कुछ बोला नहीं था. तो जब उन्होंने कुछ बोला नहीं था, tension is 0 here. Tension is 6 mg here. Tension is 3 mg here. So what is the difference between these two values? 3 mg. Question number 8. उधर बेटा खाली लिख के रखो. Wait for convex and concave road. ये भी वर्टिकल सर्कल का ही पार्ट है. Wait for convex and concave road. हम लोगों ने जो किया वो टेंशन इन द स्ट्रिंग वाला है. कॉन्सेप्ट एकदम सेम है. आंसर एट द लोएस्ट पॉइंट इज हाईएस्ट. आंसर एट द हाईएस्ट पॉइंट इज लोएस्ट. बट फिर भी रुक जाओ. माय सजेशन इज, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने टेंशन का आंसर निकाला है. कॉन्वेक्स और कॉन्केव रोड में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन का आंसर निकालेंगे. राइट? सो प्लीज वेट. एट वाले को सर्कल करो. नाइन्थ वन. A bucket filled with water revolves in a vertical circle of radius 40. The time period of revolution is nearest to what? So that water does not spill out. Very important. Water does not spill out. ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो. The bucket is going in vertical circle. The bucket is going in vertical circle. So when the bucket is reaching the top, can I say पानी ऊपर है और एयर नीचे है. Water does not spill out के आप दो reasons लिख सकते हो. Water does not spill out के आप दो reasons लिख सकते हो. One, mg provides the centripetal force. या तो आप ये लिख सकते हो mg provides the centripetal force, और या तो फिर आप ये लिख सकते हो mg is balanced by centrifugal force. दोनों करेक्ट है. Weight itself is getting turned into centripetal force. तो जिसकी वजह से ये गिरने वाला था, याद है मैंने बोला था, जिसकी वजह से ये वाटर गिरने वाला था, वही centripetal force होगा. That means it is helping that particular water to remain in circular path. या तो फिर it is balanced by centrifugal force. याद करो बेटा, ये कौन है? ये वाटर, बराबर, और ये कौन है? एयर. तो ये दोनों में से हैवी कौन है? वाटर. याद करो, heavy particles go in the direction of centrifugal force and lighter particles in the direction of centripetal force. अभी यहाँ पे मुझे क्या ढूंढना है? टाइम पीरियड. यहाँ पे मुझे क्या ढूंढना है? टाइम पीरियड. So can I write mg as 4 pi square upon t square mr. याद करो, मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स लिखने के 5 अलग अलग तरीके हैं. m गया. So can I say t square is equal to 4 pi square r upon g, and therefore t is 2 pi under root r upon g. Oh lovely. ये भी मैंने बोला था कि टाइम पीरियड लिखने का ये स्टैंडर्ड स्टाइल है. टाइम पीरियड इज 2 pi under root something upon something. राइट? सिंपल पेंडुलम याद करो. सिंपल पेंडुलम क्या बोलते थे हम लोग? सिंपल पेंडुलम t is 2 pi root of l by g. So what is t here? 2 pi. 2 pi is 6.28. r का वैल्यू बोलो प्लीज. r का वैल्यू 40. g का वैल्यू मैं 10 ले सकता हूं. तो कैन आई से 6.28 2 जा, माय आंसर इज 12.56. सोचो, टाइम पीरियड 12.56, मतलब मैं इससे फास्ट घुमाऊंगा तो पानी बाहर नहीं आएगा, कि स्लो घुमाऊंगा तो फास्ट. मुझे स्पीड मिनिमम चाहिए. राइट? मतलब इससे कम टाइम लगना चाहिए. दैट मींस इट विल नॉट स्पिल आउट. अगर मैं स्लो हो गया ना, दैट मींस इट विल स्पिल आउट. गॉट इट? बिकॉज वी रिक्वायर वी मिनिमम. प्रॉब्लम समझा बेटा? श्योर? This is the argument why it will not spill out. That means if you want to try this experiment at home, you simply have to know what is the length of the rope. If the length of the rope is 40, right?
That means you should have minimum time period of 12.56. 40 मीटर का रोप आप नहीं ले सकते हो because 40 मीटर is 40 into 3.33. That means it's about 140 feet. That means it's a 14 story building. Right? तो आप 40 सेंटीमीटर ले सकते हो. आप 40 सेंटीमीटर ले सकते हो. Accordingly, you can find out what time it will take. This was question number 10, na? 9. Question number 10. Question number 10 is ditto same as question number 4. Right? Question number 4 में बेटा difference of energy कितना आया था? 2 mRg. आपको difference ढूंढना है question number 10 में. So 4 में लिखो 4 में लिखो solvent. 10th खुद से करो weighting. 10th खुद से करो weighting. Let me know क्या आंसर आ रहा है. 2 mRg is the formula. 2 mRg is the formula. Is the answer 20? Is the answer 20? Question number 12 is your insult. Total energy पूछा है बेटा. 5/2 mRg standard answer. Question number 12 is 5/2 standard answer. Question number 13. Question number 13. शुरू करूँ. A body of mass 2 kg is attached to the spring and is hurled in vertical circle of radius 5. The minimum velocity at the lowest point. I think you can do it. The minimum velocity at the lowest point is root of 5 rg. That is 5 lg. Question number बोलो please. 13 का hint दे रहा हूँ खाली. Velocity at the lowest point is minimum root of 5 rg या तो 5 lg. Right? L का वैल्यू दिया है. Substitute करो और मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर बताओ. लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? 5 5 जा 25 25 10 जा 250. अगर ये 256 होता तो मेरा आंसर 16 होता. मेरा आंसर 256 से थोड़ा कम है, मतलब मेरा आंसर 16 से थोड़ा कम. 15 point something should be my answer. 15 point something should be my answer. My answer is Bombay. So root 10 को 5 भी ले सकते हैं. रूट 10 को 5. क्या फर्क पड़ता है बेटा? रफ जजमेंट ले रहा हूँ. यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द बाइक एट द हाईएस्ट पॉइंट. द डायमीटर इज 19.6. डायमीटर इज 19.6 मतलब रेडियस कितना लेने का? डायमीटर इज 19.6 मतलब रेडियस कितना लेने का? डायमीटर इज 19.6 मीटर, रेडियस इज 9.8 मीटर. वेलोसिटी एट द बॉटम पूछा है कि टॉप एट द हाईएस्ट पॉइंट. व्हाट इज वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट बेटा? इट इज रूट ऑफ rg. बराबर, मतलब मिनिमम इतना मेंटेन करने का. मिनिमम 9.8 फाइजा नो, दोनों 9.8, दोनों 9.8. आंसर इज 9.8. 9.8 into 9.8 का रूट इज 9.8. 9.8 into 9.8 का रूट इज 9.8. Question number 15. What is the smallest radius of the circle at which the cyclist is traveling? The speed is 36 km/h and angle of inclination is 45 degree. बेटा एकदम clear cut banking of roads का क्वेश्चन. एकदम clear cut. Right? Shall I leave the calculations up to you? 30 seconds. V square is rg tan theta. R पूछा है. And anyways theta 45 degree दिया है. Tan 45 is 1. Very simple. Don't forget to convert kilometer per hour into meter per second. Don't forget to convert kilometer per hour into meter per second. I am waiting for your answer. Answer 10.
ये बेटा 10 स्क्वायर हो गया, एक 10 कट हुआ, 1045 was 1. Answer is minimum radius of curvature of that road should be 10 meter. 16th को होल्ड पे रखो, because it is not about complete vertical circle. ध्यान से सुनो बेटा, 16th question is not this. Everybody here, 16th question is not this. 16th question is this. That means it is part of vertical circle. So 16th is one of the toughest. होल्ड पे रखो, 16th को होल्ड पे रखो और 19th को होल्ड पे रखो. 16th and 19th are interlinked. 16 में लिखो solve 19, 19 में लिखो refer 16. ये दोनों क्वेश्चंस मैं साथ में करूंगा. Leave them for me. Leave them for me. 17th question. A pilot in an aircraft who is not tied to his seat. यही बोला था मैंने, याद है? आप फेरिस व्हील में राइड ले रहे हो, and if you believe in physics, unlock yourself, nothing will happen to you. Because जिसकी वजह से आप गिरने वाले थे, वो खुद अभी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया. उन्होंने एकदम क्लियरली बोला है, देखो, the pilot is not tying the seat belt. एकदम क्लियरली बोला है. The pilot of an aircraft who is not tied to the seat can loop the vertical circle in air without falling out. Underline without falling out at the top of the circle. What minimum speed is required? एकदम सिंपल बेटा डायग्राम देता हूं. ये जो डायग्राम है ना, ये बकेट ऑफ वाटर था ना, उसके बदले आप ये पायलट के लिए डायग्राम बना लो. और इसके लिए एक स्पेशल वर्ड है, लूपिंग द लूप. उसको बोलते हैं लूपिंग द लूप. ये फेनोमेनन को बोलते हैं लूपिंग द लूप. इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या था? वाटर डज नॉट स्पिल आउट ऑफ द बकेट बिकॉज वेट ऑफ वाटर इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इधर आप क्या आर्ग्यूमेंट लिखोगे? पायलट डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज वेट ऑफ द पायलट इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या तो प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंटेंस लिखवाओ क्या? सोचो फिर आप इधर क्या फॉर्मूला यूज करोगे? mv स्क्वायर बाय आर. एग्जैक्टली, क्योंकि v पूछा है तो कॉमन सेंस हाईएस्ट पॉइंट है ना. व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी द पायलट शुड मेंटेन? रूट आर. चेक करो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं. आर कितना दिया है आज? 4 किलोमीटर है. बी केयरफुल. सो इट इज 4000 मीटर. वेरी गुड. 4000 मीटर इज 40,000 व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय g. 4 मत लेना, क्वेश्चन गलत जाएगा. इट इज नॉट 4 मीटर. फाइटर प्लेन वैसे ही 4 मीटर का रेडियस ट्रेस कर ही नहीं सकता है. उससे ज्यादा बड़ा लेंथ तो प्लेन का होता है. द प्लेन इटसेल्फ इज अराउंड 10 मीटर लॉन्ग, तो 4 मीटर का रेडियस कैसे लेगा? आर्ग्यूमेंट लिखो बेटा. ये डायग्राम बनाया. पायलट डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज दो रीजंस लिखवाता हूं इसके. रीजन नंबर 1, वेट प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Weight plays the role of centripetal force, or weight is balanced by centrifugal force. Weight is balanced by centrifugal force. अभी बेटा आप ये फॉर्मूला लिखो. mg is mg square upon r. v आएगा रूट rg. So it is 4000 into 10 का रूट. Answer is 200. Answer is 200. Question number 18 unfortunately repeat हुआ. It is word to word question number 4. आपका आंसर आएगा 2 mrg. आपका आंसर आएगा 2 mrg. क्वेश्चन नंबर 19 मैंने बोला ऐसे होल्ड पे रखो. 16 और 19 मैं करूंगा. ओके, वो थोड़ा हॉर्स के साथ करना पड़ेगा, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है उसका. क्वेश्चन नंबर 20 कॉमन सेंस की बात है. ऐसे कौन से 2 पॉइंट्स है कि जहां पे टेंशन सेम रहता है? हॉरिजॉन्टल डायमीटर m ओमेगा स्क्वायर r. ऐसा कौन सा 2 पॉइंट्स है कि जहां पे टेंशन सेम रहता है? हॉरिजॉन्टल. आंसर इज बॉम्बे. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 मास्टर क्वेश्चन, कॉइन वाला क्वेश्चन. A coin is placed on a rotating table, just slips when the distance is 4 r. On doubling the angular velocity, the coin will now slip at a distance of. याद करो बेटा, ओमेगा स्क्वायर r is constant. ओमेगा स्क्वायर r is constant. ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था. I will show you which question was that. It was assignment 3 question 9. It was assignment 3 question 9.
राइट, इट इज सेम एज असाइनमेंट 3 क्वेश्चन 9। तो 21 में मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, चलेगा? 21 में मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं। ACP is omega 1 square R1 should be equal to omega 2 square R2। डिस्टेंस पूछा है कि ओमेगा, डिस्टेंस पूछा है कि ओमेगा, और डबल क्या किया उन्होंने? एंगुलर वेलोसिटी। सो डू यू एग्री विथ मी स्टूडेंट्स? R is inversely proportional to omega square, so जो same omega has to be double है ना, therefore R should be 1/4, R should be 1/4। आपका क्वेश्चन नंबर 9 असाइनमेंट 3 में सेम कॉन्सेप्ट था, कॉइन और डिस्क वाला क्वेश्चन पूरा मैंने उसमें तो डायग्राम बना के दिया था क्वेश्चन 1 में। विजिट असाइनमेंट 3 क्वेश्चन 1 हम लोगों ने एकदम डिटेल में सॉल्व किया था, बोला था 5 स्टार। फिर वो एक 2 डायमेंशनल डायग्राम था, उसमें मैंने 3 डायमेंशन में कन्वर्ट किया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। एनीवेज क्वेश्चन 21 समझा? क्वेश्चन 22 सर्कल करो, बोलो वेट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ हेमिस्फीयर, वेट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ हेमिस्फीयर। बेटा आपके आईपैड नोट्स का पेज नंबर 10 पे एक्सट्रीम राइट साइड में ये कॉन्सेप्ट है, अभी तक मैंने सिखाया नहीं, ये 4 कॉन्सेप्ट में साथ में सिखाऊंगा। पेज नंबर 10 पे 4 कॉन्सेप्ट है, सिलिंड्रिकल वेलिड्रॉम, देन यू हैव गॉट कोनिकल funnel, then you have got hemispherical bowl, and then you have got convex rod and concave rod, right? पेज नंबर 10 पे जो कॉन्सेप्ट्स है वो चारों के चारों कॉन्सेप्ट्स में साथ में सिखाऊंगा एक ही लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 22 सर्कल किया। आर यू ऑन क्वेश्चन नंबर 23? आर यू ऑन क्वेश्चन नंबर 23? Before I solve question number 23 on the board, one of the toughest questions, mark it 5 स्टार, क्योंकि मेन नीट के पेपर में ये 2 बार आ चुका है। ओके, एंड माँ की खोपड़ी क्यों। 23rd क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करूंगा, उसके पहले 24th और 25th आप दोनों खुद से कर सकते हो। 24th, a motorcyclist is riding in a vertical circle, underline vertical circle, in a hollow sphere of radius 26 meter. The minimum speed required so that he does not lose contact at the highest point. हाईएस्ट पॉइंट पे उसका मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए? रूट ऑफ आर जी। व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट सो दैट ही डज नॉट फॉल डाउन? रूट ऑफ आर जी, आर दिया है, मल्टीप्लाई करो जी से, रूट ले लो, कितना दिया है? 26 इंटू 10, ग्रेविटी को 10 ले लो तो 260 हो गया। अगर ये 256 होता तो मेरा आंसर 16 होता, तो ये 260 से थोड़ा कम ले लो, 16 ही हो गया ना मेरा आंसर, होता मेरा आंसर 16 ओनली। अगर मैं ग्रेविटी को 10 भी लेता हूँ तो 26 10s are 260, 260 का रूट इज मोर और लेस 16, तो 9.8 लूंगा तो 256 ही आएगा। कॉमन सेंस अप्लाई करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 इज, ये फॉर्मूला का रेसिप्रोकल, बकेट वाला ही क्वेश्चन है वो, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी पूछा है, यस और नो। तो क्वेश्चन नंबर 25 में लिखो, रिफर द वर्किंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, रिफर द वर्किंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। बाद में उधर टाइम का फॉर्मूला लिखो बेटा, टाइम का फॉर्मूला इज दिस। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 1/2 पाई रूट ऑफ जी बाय आर। तो आंसर बॉम्बे होता अगर उन्होंने टाइम पूछा होता, आंसर बॉम्बे होता अगर उन्होंने टाइम पूछा होता। आंसर इज सी बिकॉज उन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछा है। As I told you, question number 23 is one of the toughest. Do not start with me. Try to understand the question, please. मैंने बोला वैसे 2 बार नीट में या तो AIPMT में या आ चुका है। A stone is tied to a string. Tied का spelling wrong है। A stone tied to a string of length L is held in vertical circle with the other end of the diameter at the center. At certain instant of time, the stone is at the lowest point. और लोएस्ट पॉइंट पे उन्होंने वेलोसिटी √5 rg नहीं दी है, सिंबल दिया है v, मतलब ये √5 rg भी हो सकता है, √6 rg भी हो सकता है, √5.1 rg भी हो सकता है, हमको नहीं पता है, सिंबल मालूम है सिर्फ v। When the string becomes horizontal, लोएस्ट पे इसका स्पीड v था, हॉरिजॉन्टल पे इसका स्पीड क्या होगा नहीं पता है,
और बाद में उन्होंने चेंज पूछा है. ओ माय गॉड, चेंज पूछा है. सुपर क्लास क्वेश्चन. प्लीज 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 डू नॉट स्टार्ट विथ मी. क्वेश्चन नंबर, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो. पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कल. पहले पार्टिकल किधर है? पहले पार्टिकल किधर है? हाँ, पहले पार्टिकल किधर है? लोएस्ट पॉइंट. बराबर. और सपोज ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इधर है, इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इधर है, और उन्होंने वी इनिशियल दिया हुआ भी है, वी बोला. ठीक है. अब ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे गया, एंटी क्लॉकवाइज है करके इधर जाएगा. आप लोगों को क्लॉकवाइज लेना है, नो प्रॉब्लम, इधर जाएगा. ये बेटा वी फाइनल मिलेगा मुझे, ये मुझे वी फाइनल मिलेगा. और बाद में उन्होंने मुझे वी फाइनल भी नहीं पूछा है, उन्होंने बोला व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी. शुरू करो. इधर गलती से भी चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला 2v sin θ/2 यूज नहीं करने का. उसका रीजन, स्पीड हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है. अगर मैं क्लॉक हैंड लेता हूं और सपोज एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन गया, राइट, तो क्लॉक हैंड्स दे गो विद यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ पे वेलोसिटी कम होते जाता है. ध्यान से सुनो. आज ही मैंने एक फॉर्मूला दिया, जनरल फॉर्मूला. व्हाट इज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट? रूट ऑफ u square 2gl bracket. So can I say v final is under root initial speed का square minus 2gl bracket 1 minus cos 90. सोचो इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे गया ना, लोएस्ट से. So what is v final? Is it under root v square? क्योंकि ये उन्होंने दिया है, इसी मैं नहीं ले रहा हूं. इसका इनिशियल स्पीड v था, v स्क्वायर माइनस 2gl ब्रैकेट 1 माइनस 0. इसका मतलब फाइनल स्पीड आया अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 2gl. यू नो व्हाई दिस क्वेश्चन इज रिस्की? बेटा एक ऑप्शन ये भी है, चेक करो. और ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, ये अपना फाइनल आंसर नहीं है. अभी वेक्टर्स याद करो. रिजल्टेंट कैसे ढूंढते हैं? रिजल्टेंट एवरीबॉडी, रिजल्टेंट कैसे ढूंढते हैं? रिजल्टेंट पूछता तो कैसे ढूंढते? v रिजल्टेंट इज रूट ऑफ v इनिशियल स्क्वायर प्लस v फाइनल स्क्वायर प्लस 2v इनिशियल v फाइनल cos ऑफ थीटा. देयरफॉर चेंज कैसे ढूंढते हैं? चेंज v इनिशियल स्क्वायर प्लस v फाइनल स्क्वायर माइनस 2v इनिशियल 2v फाइनल cos थीटा. a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. लेकिन वो तो अलजेब्रा हो गया ना. वेक्टर a है और वेक्टर b है, तो उसका रिजल्टेंट कैसे ढूंढते हैं? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या करते थे? याद करो. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया ना. इज इट v इनिशियल का स्क्वायर u स्क्वायर प्लस v फाइनल का स्क्वायर, सॉरी ये v स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 0 ना. अब ये क्या हो गया? v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर. तो 2 कॉमन ना, 2 कॉमन, अंदर आएगा v स्क्वायर माइनस gl. क्या डेंजरस क्वेश्चन था. सोचो, इधर भी 2 आया, मुझे v स्क्वायर 2gl सब जगह पे दिख रहा है, v स्क्वायर 2gl, लेकिन 2 का लोकेशन चेंज होता है. ओ माय गॉड क्वेश्चन. योर आंसर इज डेल डी. बी कब आता? फाइनल पूछा होता तो. रिपीटेशन रिक्वायर्ड. मस्त क्वेश्चन. So with this, our assignment 4 is almost over, except 2-3 questions. Anyways, we will move on to assignment 5, and we will compensate with our loss.
वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन के ऊपर से हमारे 16th और 19th पेंडिंग थे ना सिंपल पेंडुलम वाले मतलब हम लोग हॉरिजॉन्टल तक नहीं जा रहे शायद बीच में कोई एंगल 60 45 ही डोंट हो गया बेटा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 अंडरस्टूड 24 and 25 are already done. Are we now on to assignment number 5 because it is miscellaneous mixed bag of 1 2 3 4 whatever we can do. Let us see. Are we on assignment number 5? एक काम करते हैं फिर how much time do we have? Sorry? Fantastic. We can finish the article of conical pendulum. We can finish the article of conical pendulum. So officially, chapter wise it is over. AC number 2. Chapter wise it is over. Now try to understand conical pendulum. So now we are starting with a new topic, conical pendulum, and if time permits, we can start with assignment number 5. Everybody here. This is horizontal circle. Books एकदम बंद जब तक मैं बोलूं नहीं. This is horizontal circle. When the horizontal circle slows down, yes, you get conical pendulum. That is, conical pendulum is an example of body performing horizontal circle again. बराबर ना? ये बेटा ऐसा है तो अब ये horizontal circle है. अभी ध्यान से देखते जाओ, इसका एनर्जी कम करते जा रहा हूं. So the radius of the circle will reduce, but it is still horizontal circle only, ना? Right? ये conical pendulum है कि नहीं? ये भी conical pendulum है. ये भी conical pendulum है. मतलब इट इज समथिंग लाइक हॉरिजॉन्टल मैरी गो राउंड. आप पहले एकदम स्लो शुरू करते हो फिर फास्ट जाते हो तो यू गो लिटिल आउटवर्ड्स, बट अल्टीमेटली इट इज हॉरिजॉन्टल सर्कल ओनली. अल्टीमेटली इट इज हॉरिजॉन्टल सर्कल ओनली. सो कॉन्सेप्ट ऑफ कोनिकल पेंडुलम, कॉन्सेप्ट ऑफ कोनिकल पेंडुलम मैं बार बार बोलता था बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी आर्टिकल उठा के देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट इज वेक्टर डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट. सो इफ दिस is the rigid support, if this is the rigid support, I told you that in the same example you can study all four. In this same example you can study all four. Horizontal circular motion slowed down becomes conical pendulum. Yes or no? Vertical circle slowed down, थोड़े टाइम के बाद बेटा ये सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट हो जाएगा. ये सिंपल पेंडुलम हुआ, राइट? This is one dimensional. So it goes from 0 to positive extreme on x-axis, then 0, then negative extreme, then 0, positive extreme.
So oscillation is an example of one dimensional motion what we have, right? Whereas circular motion is two dimensional. Are you getting this? If you just remove the knot. Moral of the story: if this was at rest, this was at rest. This is the bob of the pendulum. This is the bob of the pendulum. This is the fixed point. This is center of mass. बेटा ये ऐसे नहीं जाना चाहिए. आप इसको शिफ्ट करो, and then you don't release it. No, you make it go in horizontal circular path. मतलब इसको ऐसे रिलीज नहीं करना है, समझा? Lift करके, then you make it go in horizontal circular path. That means this becomes the center of the path, center of the circular path. This is the position of the bob, one by one. Tell me, who is this? Wait. अब ये स्ट्रिंग ऐसा दिखेगा ना मुझे, ऐसा दिखेगा. So where will you show tension vector? Will it be along the string? Right? Most important, it is performing circle. That means centripetal force is must. मतलब resolving whom is very very important. याद करो बेटा, यहाँ पे भी mg था, और यहाँ पे भी टेंशन था. आप लोगों ने यहाँ पे किसको रिजॉल्व किया था? mg को रिजॉल्व किया था, क्योंकि ये थीटा था तो सामने ये भी थीटा था, और आपने यहाँ पे mg को रिजॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे टेंशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा. रीजन, इफ आई रिजॉल्व टेंशन देन ओनली आई विल गेट सेंट्रीपिटल फोर्स. चेक करते हैं. रिजोल्यूशन का बेस्ट तरीका क्या है? आपके पास जो भी वेक्टर्स है, यू एक्सटेंड देम इन उल्टा डायरेक्शन. ये मैं उल्टा डायरेक्शन में लेके गया, ये भी मैं उल्टा डायरेक्शन में लेके गया. सो अप्लाई कॉमन सेंस. इफ दिस इज थीटा, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? That means you stand a chance to resolve both of them. लेकिन कोई भी एक सही है. अगर बेटा मैं इसको रिजॉल्व करता हूं तो mg sin थीटा इसको वापिस लेके आएगा. मुझे इसको वापिस नहीं लाना है. नो, I want it to perform circle. So can I say I should resolve tension? Yes or no? सबसे इंपॉर्टेंट, वन बाय वन. बैंकिंग ऑफ रोड्स में किसको रिजॉल्व किया था? नॉर्मल रिएक्शन. बैंकिंग ऑफ रोड्स विथ फ्रिक्शन में किसको रिजॉल्व किया था? दोनों को, नॉर्मल रिएक्शन को भी और फ्रिक्शन को भी. वर्टिकल सर्कल में किसको रिजॉल्व किया था? mg को. और कोनिकल पेंडुलम में किसको रिजॉल्व करने का? ये भी मैंने दिया होगा, कौन से आर्टिकल में किसको रिजॉल्व करने का. ओके, इधर देखो. चलो कम ऑन, टेल मी हु इज दिस. अभी मैं ये टी को टी डैश लिख रहा हूं, बिकॉज द सेम आर्टिकल इज गोइंग टू आस्क यू कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, एंड टी इज रिजर्व्ड फॉर टाइम पीरियड. तो मैं टेंशन को टी डैश बोलता हूं. टेल मी हु इज दिस. टी डैश cos थीटा. एंड हु इज दिस? टी डैश sin थीटा. यहां तक समझा? Somebody must balance the weight, you know this, and somebody must play the role of centripetal force, you know this also. Yes or no? So from the diagram what will you get? From the vector diagram what will we get? From the vector diagram, t dash sin theta is playing the role of centripetal force. और ये centripetal force को मैं लिख रहा हूं m omega square r. m v square upon r के बजाय m omega square r, because my intention is to find out period. In the concept of conical pendulum, I want to find out two things. What is period and what is tension. Tension तो हमेशा ढूंढने का, because you should always take care that you are not crossing the breaking tension का value. So tension हमेशा ढूंढने का. Correct? T dash sin theta is FCP is m omega square r. Let's we call this as equation 1. T dash cos theta, as you see, is doing the job of balancing the weight. Let me call this as mg. अगर बेटा मैंने रेशियो लिया तो टेंशन जाएगा, ओमेगा बचेगा. यस और नो? अगर मैंने रेशियो लिया तो टेंशन जाएगा, ओमेगा बचेगा, और बाद में मैं कोई भी एक वैल्यू यूज कर सकता हूं, इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2, एंड आई कैन फाइंड आउट टेंशन.
समझ में आ रहा है तुझे क्यों स्टेयर कर रहा हूँ? मत आओ तुम लोग यार, बिफोर आई लूज माई टेम्पर ना, मुझे ये सब नहीं चाहिए होता है रिकॉर्डिंग में, सच्ची में नहीं चाहिए होता। नींद आता है घर पे बैठने का, नहीं आने का क्लास में। एकदम बोल्ड बोलता हूँ मैं, एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर एंड शुड नॉट। Doctors have to be very, very dedicated, very, very focused, very, very knowledgeable. You are going to deal with human life. So अगर मैं रेशियो लेता हूं तो टेंशन जाएगा, तो पहले मैं रेशियो लेता हूं। दो अननोन है मेरे पास, टेंशन भी अननोन है, ओमेगा भी अननोन है क्योंकि टाइम अननोन है, राइट? एक को उड़ाऊंगा, दूसरे को बचाऊंगा और बाद में मैं टेंशन ढूंढूंगा। शुरू करूं? सो कैन आई से इक्वेशन 1 upon equation 2 gives me, equation 1 upon equation 2 gives me t dash sin theta upon t dash cos theta is m omega square r upon mg. yes or no? टेंशन गया, मास भी गया। sin theta upon cos theta therefore is equal to omega square r upon g. you may be thinking sir आपने tan theta क्यों नहीं लिखा? yes or no? Is the time for me to redesign this diagram? Is the time for me to redesign this diagram? ये डायग्राम बेटा मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूं। Do I see a right angle triangle? बराबर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ये डायग्राम का ये रेप्लिका है, राइट? इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। अब डायग्राम ध्यान से देखो, अगर बेटा ये पार्ट में शेड कर दूं तो ये ऐसा दिखेगा कि नहीं? Have you exactly understood what is H? H is perpendicular height of the cone. What is L? Slant height of the cone, and it is the slant height of the cone which is the length of the straight, not the perpendicular height. ये समझा? Apply common sense. ये थीटा है, मतलब यहां से मुझे दो रिजल्ट्स मिलेगा, H is L cos theta and R is L sin theta, और तीसरा रिजल्ट तो जो बचपन से चला आ रहा था वो R square plus X square is L square, वो तो मालूम ही है। ये समझा मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज R की जगह पे मैं L sin theta रख सकता हूं और वो sin theta मेरा उड़ने वाला है। अगर एक बार मैंने इसको tan theta रख भी लिया, नो प्रॉब्लम, I can replace tan theta back by sin theta and cos theta. So what will I get? Sin theta upon cos theta is equal to omega square r. R is L sin theta. R is L sin theta upon g. Sin theta गया. This gives me omega square is equal to g ऊपर गया. This is L cos theta. Therefore omega is under root g upon L cos theta. Therefore 2 pi by t, because मुझे पीरियड ढूंढना है, is equal to under root g upon L cos theta, and therefore t is 2 pi under root something upon something. काफी सालों पहले की बात है, मैंने बोला था टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमेशा ऐसा आता है। इज इट ऑल्सो 2 पाई अंडर रूट h by g? ओ लवली, बिकॉज दैट इज n cos theta. यस और नो? आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट, टाइम इज 2 पाई अंडर रूट समथिंग अपॉन समथिंग. सो आइदर इट इज L cos theta अपॉन g और इट इज h अपॉन g. अगर उन्होंने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया तो उनको रेडियस ऑफ द सर्कल देना ही पड़ेगा, तो फिर आप h ढूंढ सकते हो। और अगर उन्होंने स्ट्रेट अवे परपेंडिकुलर हाइट ही दे दिया तो टेंशन ही नहीं है। सपोज मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर हाइट दिया डेटा में और बोला टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम ढूंढो, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स बिकॉज मैंने h दे दिया, g स्टैंडर्ड वैल्यू है, 2 पाई स्टैंडर्ड वैल्यू। यस और नो? हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट टेंशन? यस, सॉरी, पीरियड, हाउ टू फाइंड आउट पीरियड, अंडरस्टूड? नाउ टेंशन के लिए कोई भी एक फॉर्मूला उठाओ, कोई भी, ये उठाओ, जो भी फॉर्मूला उठाना है। मैं सेकेंड फॉर्मूला उठा रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. स्टूडेंट्स, डू यू एग्री विथ मी? t डैश cos थीटा इज इक्वल टू mg. अभी मुझे टेंशन ढूंढना है, मतलब t डैश
So can I say T dash is mg upon cos theta? One style of writing tension. Second style of writing tension, mg upon h by L. Array h is L cos theta, therefore cos theta is h by L. Therefore it is mg L by h. Oh my God, equation. mgh is the formula for potential energy. और ये potential energy नहीं है. No, this is mgh by L नहीं है. This is mg L by h. टेंशन लिखने का एक फॉर्मूला, टेंशन लिखने का दूसरा फॉर्मूला, टेंशन लिखने का तीसरा फॉर्मूला, टेंशन लिखने का तीसरा फॉर्मूला. Can I rewrite tension as T dash is equal to mg sec theta? Yes or no? Tension is mg sec theta. And finally, tension is mgl upon root of L square minus R square. सोचो, ये मैं इधर हूं, इधर. What is h from here? मतलब वो डिपेंड करता है उन्होंने डेटा में क्या दिया. थीटा दिया है तो ये यूज कर सकते हो या तो ये यूज कर सकते हो. L और h दिया है तो ये यूज कर सकते हो, राइट. L दिया है लेकिन h नहीं दिया है, R दिया है. Use Pythagoras and you can use the formula. Is that very clear? What is time period of a conical pendulum? 2 pi under root h by h, where h is the perpendicular height of the cone, and that h is L cos theta also. So what is time period of a conical pendulum? 2 pi root of L cos theta by g. What is tension in the string for a conical pendulum? mg upon cos theta, mg into sec theta, mg L by h. H by L नहीं, be careful please. mg L by h या तो mg L upon under root L square minus R square, because we can see right angle triangle also over here. Very very beautifully given in your notes. Page number I think 14 होना चाहिए. Book में देखो. Book में देखो. Are you on page? हाँ यही है बेटा, यही है. Are you on page number 16? Are you on page number 16? Page number 16 रिवाइज करो. अनफॉर्चुनेटली कोनिकल पेंडुलम इधर नहीं दिया है, इधर दिया. ओ यस, बैंक रोड के बाजू में. ठीक है, परफेक्ट. तो फिर उधर से ही पढ़ो, फिर चारों बॉक्स सब कुछ दिया हुआ. उधर पेज नंबर 17 में लिखो, रिफर आईपैड नोट्स पेज नंबर 7. So with this, government textbook wise, the chapter is over. Board exam wise, this chapter is over. NEET wise, not at all over. Not at all. Still 25% is left. Because you have cylindrical velodrome, you have conical funnel, you have got convex road and concave road, you have got hemispherical bowl. बाउल के एकदम टॉप पे 5 रुपए का कॉइन रखो, हल्के से पुश करो, हल्के से. Then it will go on the curve, right? थोड़ा fast push करो. It will fly off along the tangent to the circle. So this tells you how fast you should go on the bike so that you don't lose contact. Otherwise you will lose contact and your bike may be damaged also. The spinal cord will be damaged. 3, 2, 1. Hey, महिला मंडल. मुलगी शिकली प्रगति करेगी. पेज नंबर 7. दिया है, मस्त दिया है. लोग इसकी भी फोटो लो. अरे यार दिया है ना. मुझे फोटो का एक बुक निकालना चाहिए ना, और द फोटोज का एक
हाँ, फिजिक्स इन अ नटशेल। मतलब मेरे पास रिटायरमेंट होने के बाद बहुत सारा काम है, रिटायर होने के बाद भी कमा सकता हूँ। हाँ, यूट्यूब चैनल। I'm going to Kashmir as my assistant. Right, Kashmir. Job ready है। साथ में कमाएंगे। चलो, पेज नंबर 7 of your iPad notes, right side, conical pendulum, board work देखते जाओ, साथ साथ में वहाँ का वेक्टर डायग्राम देखो। I'm super sure everything is very clear in the diagram over there. Assignment 2 question number 20 was pending. Please go there. In fact, iPad notes पेज 7 के बाजू में लिख के रखो। iPad notes पेज 7 के बाजू में लिख के रखो, conical pendulum के बाजू में। Solve assignment 2 question 20. I'm sure you don't need me in that. I'm sure. मुझे डेटा देख के बेटा 1 by 1 बताओ। 100 ग्राम is M. 100 ग्राम is M. अब टाइम पीरियड जब ढूंढोगे तो आपको एम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एम कैंसिल हो जाता है। हाँ, लेकिन टेंशन ढूंढोगे तो एम की जरूरत है। थ्रू आउट टेंशन का फॉर्मूला में एम आना ही चाहिए, बिकॉज टेंशन इज एम जी इंटू समथिंग, राइट? टेल मी व्हाट इज दैट 1.3 मीटर? एल, वेरी गुड। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है 50 सेंटीमीटर। इज इट 0.5 मीटर? अप्लाई कॉमन सेंस बेटा। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। इधर देखो सब लोग, इधर देखो, ये 5 होता और ये 12 होता तो ये 13 होता। तो अगर ये 0.5 है तो ये 1.2 होना चाहिए ताकि ये 1.3 हो। ये 1.3 है, ये 0.5 है, therefore ये 1.2 है, और therefore ये 1.2 मुझे मिला। 1.2 upon 9.8 is as good as 1.2 upon 9.6. 12 8 96, रूट के अंदर 1/8 आएगा। सॉल्व करूं कि आप लोग ट्राई करोगे? आप लोग ट्राई करोगे? h दिया है बेटा, h दिया है 1.2 मीटर। ना h नहीं दिया, l दिया है। l इज 1.3, r इज 0.5, तो h मिलेगा 1.2। आपको टाइम पीरियड पूछा है। कौन सा है? असाइनमेंट 5 क्वेश्चन 2। वेरी गुड, ढूंढते जा, अपना टाइम बचेगा। प्राउड ऑफ यू। सिमिलर है। हाँ, सिमिलर है ना, टेंशन पूछा है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं शुरू करने वाला हूँ असाइनमेंट 5। टाइम नहीं है अपने पास, जितना हो सके उतना करने का। क्या आंसर है? 2 पाई अंडर रूट 1/8। सो 2 पाई अपॉन 2 रूट 2 आया कि सॉल्व करूं? अच्छा, 2 पाई अपॉन 2 रूट 2 इज पाई अपॉन रूट 2। 3.14 अपॉन 1.41, 14 2s are 28. 2 point something should be the answer. 2 point something should be the answer. आया कि सॉल्व करो बोर्ड पे?
मुझे 30 सेकेंड लगेगा सॉल्व करो। चलो कॉन्सेंट्रेट। L was 1.3, R was 0.5. Therefore, H is under root R L square minus R square. This is 1.2. Time period of a conical pendulum is 2 pi under root H by G. 2 pi under root 1.2 upon 9.8. So this is as good as 2 pi under root 12 upon 96. 98 को मैंने 96 लिखा. So this is 2 pi upon root 8. So this is 2 pi upon 2 root 2. 2 to 2. This gives me 3.14 upon 1.41. 1.42 za 2.8. So my answer is 2 point something. My answer is 2 point something. असाइनमेंट 2 का जो पेंडिंग क्वेश्चन था वो ये था. Are we now on assignment 5? Are we now on assignment 5? Assignment 5. Question 1. Circle. Wait for convex rod, concave rod. Question 2. A string of length 1 meter is fixed at one end and carries a mass of 100 gram. If the string is revolved by 4 radian per second in horizontal plane as shown. As shown मतलब ये conical pendulum हुआ. You are expected to find out tension in the string. याद करो बेटा, टेंशन के मेरे पास 2 फॉर्मूले थे. Don't start with me. टेंशन का मेरे पास एक फॉर्मूला था T डैश साइन थीटा इज m ओमेगा स्क्वायर r, और मेरे पास दूसरा फॉर्मूला था T डैश कॉस थीटा इज mg. Since theta is not given, this formula is useless for me, right? Then how come this formula is useful to me? Can I write T dash sin theta as m omega square L sin theta? Oh lovely. याद करो, R is L sin theta. एडवांटेज sin theta गया. इसका मतलब टेंशन इज m ओमेगा स्क्वायर L. मास इज 100 ग्राम, 0.1 किलोग्राम. ओमेगा दिया है उन्होंने 4. इज इट 4 स्क्वायर? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया है 1 ना. So my answer is 0.1 into 16, 1.6 Newton. समझा? थीटा दिया नहीं है तो कोशिश ये करने का थीटा बाय बाय हो. असाइनमेंट 3 का पेंडिंग था कुछ तो. असाइनमेंट 3 का कौन सा था? 14. वेरी गुड ढूंढते जाओ. असाइनमेंट 3 का 14. अरे बाबा वो कॉन्वेक्स रोड कॉन्केव रोड का है. रुक ना जरा, वो कॉन्वेक्स रोड कॉन्केव रोड का है. असाइनमेंट 3 का 14 ना. हाँ करूंगा मैं, बट इट इज ऑन कॉन्वेक्स रोड एंड कॉन्केव रोड. नॉर्मल रिएक्शन पेंडिंग है. ओके कम बैक. असाइनमेंट 5 ये कौन सा था? सेकंड. असाइनमेंट 5 थर्ड. If the frequency of rotating platform is f and distance of a boy from the center is r, then what is the area swept per second by the line connecting to the boy to the center? डराने के लिए. सुपर सिंपल क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी. ये बेटा रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है. ओके, सेंटर से यहां कहीं पे बॉय है. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दिस टेबल इज f. राइट. सपोज ये बॉय यहां से यहां गया तो ये एरिया स्वेप्ट कितना, ये पूछा है. राइट. कैन आई से एरिया स्वेप्ट अपॉन टाइम, एरिया कवर्ड अपॉन टाइम.
इज, अगर ये पूरा सर्कल खत्म करता तो टाइम टी होता कि नहीं? सो कैन आई से इट इज पाई आर स्क्वायर एफ। आंसर, पूरा सर्कल खत्म नहीं किया तो जितना सर्कल खत्म किया उतना, वेट तो भी यही आंसर आएगा। चलो आधा सर्कल खत्म किया तो ऊपर क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, देयरफॉर टी अपॉन 2। क्वार्टर ऑफ अ सर्कल खत्म किया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, सो टी अपॉन 4। 1/12 ऑफ अ सर्कल खत्म किया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 12, देयरफॉर टी अपॉन 12। आंसर सेम आएगा भले उसने पूरा सर्कल खत्म किया कि नहीं किया। समझा लॉजिक कि वापस बोलूं? समझा? आंसर इज पाई आर स्क्वायर एफ। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया। रेट at which area is swept। ब्रूम लेने का, ब्रूम, और ये ब्रूम ऐसे घुमाने का ऐसा, तो उतना पोर्शन में डस्ट साफ हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एरिया स्वेप्ट। गॉट इट? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। हेमिस्फीयर ऑन होल्ड, हेमिस्फीयर ऑन होल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड लाइन में हेमिस्फीयर अंडरलाइन करो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 5। A flywheel is rotating about a fixed axis, slows down from 400 rpm to 200 rpm in 1 minute. DCT का क्वेश्चन। How many revolutions does the wheel complete in the same time? कैसे करोगे बताओ? आज का लास्ट क्वेश्चन कैसे करोगे? What is frequency 1? सिर्फ हिंट देता हूं, कैलकुलेशन आप लोग करोगे। फ्रीक्वेंसी 1 बोलो, 400 rpm, so is it 400 upon 60? That means it is 20 upon 3 rps. Frequency 2, 200 rpm, so is it 10 upon 3 rps? This happens in how much time? 1 minute. Is it 60 seconds? Number of revolutions पूछा है, हिंट देता हूं, उल्टा सोचने का। एवरेज लिया तूने, 400 और 200 का एवरेज लेके 300 आंसर। लॉजिक बराबर है, लॉजिक बराबर है, लेकिन मैंने 200 और 400 के बीच के चारों ऑप्शंस दिए तो लॉजिक गलत है ना? लॉजिक में कभी नहीं जाने का। कैन आई से थीटा इज 2 पाई इनटू नंबर ऑफ रोटेशंस? लेट अस कॉल दिस इज इक्वेशन 1। हिंट नंबर 1, अल्फा इज 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1 अपॉन टाइम। अल्फा का वैल्यू सम नेगेटिव रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? देखो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिटार्डेशन। तो पहले अल्फा ढूंढने का, उसके बाद में ओमेगा 2 स्क्वायर इज ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। बोलो माइनस साइन क्यों? रिटार्डेशन। तो बेटा इसमें आपको थीटा मिलेगा क्योंकि आपको अल्फा ऑलरेडी मिल चुका है यहां से, बराबर। एंड दैट थीटा यू सब्स्टिट्यूट हियर, तो आपको एंड मिलेगा। हिंट समझा? जिंदा लोग हिंट समझा? जब भी बोलना होता है तभी चुप बैठते हैं, और जब भी नहीं बोलना था काव काव चलता है। तो एवरेज करके कर सकते, बट इट माइट नॉट हेल्प, because it is not necessary that it is uniformly decreasing. Uniformly decrease है तो एवरेज 400 और 200 का एवरेज 300 चल सकता। Understood the lecture of the day? Homework for Wednesday. 115 MCQs. 115 MCQs, 115 MCQs। प्रैक्टिस पेपर 5 और 6 जो साथ में अटैच करके दिया था ना, वो सबमिट करना है वेडनेसडे को। वेडनेसडे को आई विल बी टेकिंग अप द डाउट्स फर्स्ट of those 115 MCQs, and thereafter I will start with new concepts. Understood the homework of the day? No homework, stay home. If you are falling sick because you don't want to do the homework, stay home permanently. Okay? Bye bye, see you. Please stop. Sir, Marvel की Better. कौन सा Marvel